राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिन के ओडिशा यात्रा पर हैं। आज राष्ट्रपति भुवनेश्वर में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफा देखने पहुंची। उदयगिरी की गुफाओं की अपनी खासियत है। उदयगिरी की गुफाएं ब्राह्मी लिपि में अंकित हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। यह अभिलेख जैन शमोकार मंत्र से आरंभ होता है। इसमें कलिंग सम्राट खारवेला के सैन्य अभियानों का जिक्र है। कलिंग ओडिशा का ही प्राचीन नाम है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कलपुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का दर्शन किया था। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज 2023 बैच के इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। उप राष्ट्रपति ने अधिकारियों से रक्षा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तेजी से बदलती तकनीक के इस्तेमाल करने का आह्वान किया। उप राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा और शासन का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। Friends, the landscape of defense and governance is rapidly changing. Technological advancements, geopolitical shifts, and complex administrative functions require us to continually adapt fast-changing and evolving technologies and innovate. Managing defense estate is turning out to be a great challenge also. I personally know that there is intermix of civilian population also. Certain incursions have taken place by way of structures. There are legal wranglings. Tanu was handling matters in Punjab and Haryana High Court in hundreds. Just imagine these matters. And therefore, you are required to update yourself with the latest land record techniques of a global nature. These days, technology helps you to immediately detect the changes that have taken place over a period of time. They constitute a great evidentiary value. किसी भी देश के विकास में युवाओं की अहम भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति ने भी भारत की विकास गति में युवाओं की भूमिका को बेहद अहम करार दिया है। Friends, the landscape of defense and governance is rapidly changing. Technological advancements, geopolitical shifts, and complex administrative functions require us to continually adapt fast-changing and evolving technologies and innovate. There was a reflection how technology can be used. Disruptive technologies have come to stay here. They offer challenges, they offer opportunities. In your field, you will have to use them. Artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, blockchain, all these things you will have to grapple with. To me, not long ago, these were just words. Machine learning from lexicon means nothing. Blockchain. But when I got a presentation from the secretary of the department and 5 scientists, it was eye-opener for me. As impressionable minds in technology, you keep on learning. Your learning will never stop. The moment you stop learning, your commitment to public service will slide and downwards. So update yourself at global benchmark. उप राष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने आज राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के छात्रों के साथ बातचीत की। उप राष्ट्रपति ने युवाओं को लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताते हुए संसद के कामकाज पर बारीकी से निरीक्षण करने, तथ्यों की गहराई से जाने, जिज्ञासु होने और तकनीकी उपकरणों का पूरा सहयोग करने की सलाह दी है। The most important component, one of the most important, parliamentary committees. Committees are very important
you have to know fully what committees do. Committees are constituted with the participation of both Lok Sabha and Rajya Sabha members. These committees focus on critical issues. Let me give you a small illustration. After independence, and for the first time, we have had 3 laws, and those 3 laws are with respect to working of our system in courts. Dand Vidhan, which was colonial legacy, became Nyay Vidhan. तो 3 कानून बने. When the matter came for consideration, it was thought wise that a committee should look into it. So, a committee dealt with the issue. It had members from both the houses. That committee was chaired by a very senior member. Everyone in the committee had one point or the other. They had the occasion to go to the issue at micro level. When you meet in a group or in a committee, you get full freedom to express your point of view. You hear the point of view of others. If your point of view is different than the point of view of the majority, you make an effort to persuade. So that's intense interaction in cool, calm, composed atmosphere. And then a report is submitted. That report comes before the House. कानून बनाने का काम कमेटी का नहीं है. कमेटी का दायित्व है सघन गहन अध्ययन कर सभी सदस्यों के विचार लेकर एक मत हो जाए बहुत अच्छा, नहीं हो तो हर मत के बारे में जानकारी दी जाती है. If a member is part of the committee, makes his point of view before the committee by majority holds otherwise, that member has great opportunity to participate in the proceedings before the House, make his point known to the House, try to convince the House by persuasion, logic and rationality. If you do not discharge your constitutional duty, if you do not participate in the debate, if you do not take your point further, you are in a sense not performing your duty. And then if you say something outside, you suffer the handicap that you had valuable opportunity, constitutional platform, a rare opportunity that is available only to members of parliament. You fail to avail the opportunity. In a sense, you forfeit your right. You show your concurrence by non-participation, by observing silence. उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद का मतलब चर्चा और वार्तालाप है. उपराष्ट्रपति ने छात्रों को राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ी रोचक जानकारियां भी साझी की. साथ ही उन्होंने संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया. इससे पहले भी उपराष्ट्रपति RSIP के छात्रों के साथ संवाद कर चुके हैं. जब संविधान बना था तो उसमें एक प्रावधान किया गया था कि महामहिम राष्ट्रपति सदन के हर सेशन में भाषण देंगे. उस साल में कितने सेशन होते हैं? 3.
और जब सदन में भाषण राष्ट्रपति जी देती हैं या देते हैं, उस पर चर्चा होती है। चर्चा होकर एक धन्यवाद प्रस्ताव होता है। तो तुरंत देखा गया कि साल में 3 बार देना तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो उसमें बदलाव हुआ, और सबसे पहले बदलाव हुआ। अब राष्ट्रपति महोदया या राष्ट्रपति महोदय भाषण कब देते हैं? वो राज्यसभा या लोकसभा को भाषण नहीं देते, वो दोनों को संयुक्त को देते हैं। इसका कारण है, आप संविधान के अंदर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पार्लियामेंट की एक डेफिनेशन है। उस डेफिनेशन में सबसे पहले पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। तो 2 विचित्र बातें सामने आई हैं। डॉक्टर अंबेडकर जिनका काम था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट करना, 370 को नहीं किया। और सरदार पटेल का जो पूरा काम था एकीकरण करना, उनके दायित्व से जम्मू कश्मीर नहीं था। ये संयोग की बात है, पीड़ा की भी है और चिंता की भी है कि दोनों बहुत बड़ी समस्या बन गए। भारत के संविधान में एक ही अनुच्छेद टेम्परेरी है, अनुच्छेद 370, और एक भावना बन गई कि ये तो परमानेंट है। संविधान निर्माताओं ने, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा इट इज टेम्परेरी, एंड कुछ लोगों ने सदन तक में कह दिया ये परमानेंट है, कैसे मिटाओगे? पता लगाइए कि पार्लियामेंट में जब जब आर्टिकल 370 की चर्चा हुई तो किसने क्या कहा। जब 1963 की डिबेट देखोगे तो उस समय के प्रधानमंत्री, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था अनुच्छेद 370 घिसते घिसते घिस जाएगा। वो आप और हम सबको रोनता चला गया। कई दशकों तक ऐसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक रूस के दौरे पर हैं। भारत और रूस की दोस्ती हर कालखंड में मजबूती के साथ खड़ी रही। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नफे नुकसान से दूर रिश्तों की बात होती है तो उसमें भारत और रूस सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के दौरे पर हैं। दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा और पारस्परिक हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। रूस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा को लेकर अपने विचार साझा किए। मैं अगले 3 दिनों के लिए 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस और ऑस्ट्रिया गणराज्य की अपनी पहली यात्रा पर जा रहा हूं। भारत और रूस के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान क्षेत्रों सहित विशिष्ट और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों में बहुत आगे बढ़ी है।
मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हम एक शांतिपूर्ण और स्थिर क्षेत्र के लिए अपनी सहायक भूमिका निभाना चाहते हैं। यह यात्रा मुझे रूस में जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर प्रदान करेगी। ऑस्ट्रिया की यात्रा से मुझे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन और चांसलर कार्ल नेहमर से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। ऑस्ट्रिया हमारा एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार है और हम लोकतंत्र और बहुलवाद के आदर्शों को साझा करते हैं। पिछले 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है। मैं नवाचार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को और भी अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चर्चा करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए दोनों पक्षों की व्यापारिक हस्तियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूँ। मैं ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करूंगा, जिसे अपनी व्यावसायिकता और आचरण के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे।